नमस्कार। खबरों के इस बुलेटिन में तुहाडा स्वागत है। मैं हाँ जसप्रीत सिंह। पहला पेश ने चोणवीआं खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ, ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੱਦਾ। उप राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा है कि भारत बेमिसाल ढंग नाल प्रगति कर रहा है। तीन दिना प्रवासी भारती दिवस सम्मेलन अज तो इंदौर विच। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भलके करनगे सम्मेलन का रस्मी तौर पर उद्घाटन। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर युवा प्रवासी भारती दिवस की प्रधानगी करेंगे। पंजाब सरकार वालों G20 सिखर सम्मेलन लई अमृतसर के विकास और सुंदरीकरण लई 100 करोड़ रुपए खर्च करने की योजना। भारत ने तीजे ते आखिरी T20 मैच विच श्रीलंका नूं 91 दौड़ां नाल हराया। 2-1 नाल जित्ती 3 T20 मैचों की लड़ी। ते हुण खबरां विस्तार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀ ਦੂਜੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਸਮਾਪਤੀ ਸਮਾਰੋਹ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਬੇਮਿਸਾਲ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ, ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਆਪਕ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। प्रधान मंत्री मोदी ने जोर दे के कहा कि दुनिया दीआं नज़रां भारत उत्ते टिकियां होईयां ने अते देश के नौजवानों की अमीर प्रतिभा नाल आउण वाला समा भारत दा है। उन्हां कहा कि देश के बुनियादी ढांचे, निवेश, नवाचार अते शमूलीयत के चार थंम सारे ही खेत्रां विच चंगे प्रशासन नूं हुलारा देण लई देश के यत्नां नूं अगे वधाउणगे। प्रधानमंत्री ने सूखम, लघु ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ उद्यम सैक्टर ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣਨ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਸਥਾਨਕ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਅਭਿਲਾਸ਼ੀ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਏਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਛਾਣੇ ਗਏ ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਵੇਗਾ। उप राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा है कि भारत बेमिसाल ढंग नाल प्रगति कर रहा है। दिल्ली कैंट विच कल NCC गणतंत्र दिवस कैंप का उद्घाटन करन मौके अपने संबोधन विच उन्हां कहा कि भारत मौकिਆਂ ਅਤੇ निवेश का विश्व पद्धरी केंद्र बन गया है। उन्हां कहा कि भारत अज विश्व की सब तो वड्डी अर्थ व्यवस्था है। उप राष्ट्रपति ने कहा कि कोविड महामारी दौरान दवाइयां, ਟੀਕਿਆਂ ਅਤੇ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣ ਕੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਫਤ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਧਨਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਪਾਨ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਤੀਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਆਟੋਮੋਟਿਵ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। उप राष्ट्रपति ने कहा कि NCC सालों तो उत्साही ਅਤੇ अनुशासित नौजवानों का कैडर है जो देश के ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੱਭਿਆਚਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਧਰਮ ਅਤੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। 17ਵਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਦਿਵਸ ਸੰਮੇਲਨ ਅੱਜ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੰਦੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। 3 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਸੰਮੇਲਨ 10 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਭਲਕੇ ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਦਾ ਰਸਮੀ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੌਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਸਮਾਪਤੀ ਇਜਲਾਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਸਨਮਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ। प्रवासी भारती दिवस सम्मेलन का मुख्य विषय डायस्पोरा रिलायबल पार्टनर्स फॉर इंडिया प्रोग्रेस इन अमृतकाल यानी कि अमृतकाल विच भारत की प्रगति लई प्रवासी भारती भरोसेयोग भागीदार ने।
ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 70 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ 3,500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਯੁਵਾ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਖੇਲ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਅੱਜ ਯੁਵਾ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਦਿਵਸ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਸਿੰਘ ਠਾਕੁਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਯੁਵਾ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਦਿਵਸ ਇਜਲਾਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਵਾਚਾਰ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਸਨਮਾਨਿਤ ਮਹਿਮਾਨ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐਸ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਜ਼ੈਨੇਤਾ ਮੈਸਕਰੈਨਾਸ ਇਜਲਾਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਗੇ। समारोह दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक यादगारी डाक टिकट भी जारी करनगे। ये डाक टिकट भारत के प्रवासियों के सुरक्षित और कानूनी प्रवास नूं समर्पित है। विदेश मंत्रालय ने सुरक्षित जाओ, जानकारी हासिल करके जाओ यानी कि गो सेफ गो ट्रेंड मुहिम शुरू की है। इस मुहिम का उद्देश्य विदेशों में रोजगार लिए जाने वाले लोगों को सुरक्षित और कानूनी ढंग तरीकों की जानकारी देना है। मंत्रालय ने कहा है कि प्रवासी मजदूरों के हितों को ध्यान में रखदियां ECR प्रवासियों को सलाह दी जाती है कि वह इमीग्रेंट पोर्टल राही ही विदेश में रोजगार लिए जान। पोर्टल में 2 लाख तो वध विदेशी कंपनियां और 2,500 तो वध रजिस्टर्ड एजेंट ने। इस तो इलावा पोर्टल में रजिस्टर्ड और नॉन रजिस्टर्ड भर्ती एजेंसियां की सूची भी दर्ज है। केंद्रीय वणज ਅਤੇ उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि पिछले 8 वरियां दौरान ढांचागत सुधार के कारण भारत आर्थिक रूप में विकसित विश्व के 3 देशों विचों एक बन गया है। वाटन भारत आर्थिक मंच की 27वीं बैठक मौके वर्चुअल संबोधन दौरान पीयूष गोयल ने कहा कि आर्थिक खेत्र में हुण असीं पहलां तो बेहतर और वधेरे पारदर्शी हो गए हाँ। उन्होंने आर्थिक खेत्र में वस्तु और सेवा कर नूं एक वड्डे सुधार का दर्जा दिता। गोयल ने बुनियादी सैमी कंडक्टर और घरेलू उसारी के खेत्र में विकास नूं महत्वपूर्ण आर्थिक सफलता दस्या। पंजाब सरकार ने अमृतसर में मार्च महीने दौरान आयोजित होने वाले G20 सिखर सम्मेलन लई शहर के विकास और सुंदरीकरण लई 100 करोड़ रुपए खर्च करने की योजना बनाई है। सूबे के स्थानक सरकारां बारे मंत्री इंद्रवीर सिंह निज्जर और लोक निर्माण ते बिजली मंत्री हरभजन सिंह ETO ने कल अमृतसर में इस सम्मेलन लई कीतियां जा रही तैयारियां की समीक्षा दौरान अधिकारियों नूं सारे ही काम समय अंदर मुकम्मल करने दीआं हिदायतां जारी कीतियां। निज्जर ने दस्सिया कि G20 सम्मेलन इस साल मार्च में अमृतसर विखे संभावित तौर पर 15 तो 17 मार्च नूं होण जा रहा है, जिस विच विश्व के प्रमुख देशों के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और वड्डी पद्धर विच अंतरराष्ट्रीय डेलीगेट भी शामिल होणगे। उन्हां अधिकारियों नूं शहर की सुंदरता और मुढ़ला ढांचा मजबूत करने के काम नूं तेजी नाल मुकम्मल करने दीआं हिदायतां भी दित्तियां। लोक निर्माण और बिजली मंत्री हरभजन सिंह ETO ने बिजली महकमे के अधिकारियों नूं बिजली के खंभियां ते लगियां नजायज़ केबल तारां नूं तुरंत हटाउण ते लोक निर्माण विभाग नूं महकमे दीआं ज़मीनां ते कीते गए नजायज़ कब्जिਆਂ नूं हटाउण लई तेज़ी नाल कार्रवाई करन दी हिदायत दित्ती। मीटिंग दौरान दोहां मंत्रियों ने G20 सिखर सम्मेलन दौरान तय किए गए रूट का दौरा भी किया और वख-वख थावां ते होण वाले कामां बारे अधिकारियों नूं निर्देश भी जारी किए। कैबिनेट मंत्री फौजा सिंह सरारी वालों अस्तीफा देने तो बाद उन्हां दी थां पटियाला देहाती के विधायक डॉक्टर बलबीर सिंह नूं कैबिनेट मंत्री वजों शामिल करके सेहत मंत्री का अहुदा दे दिता गया है। चंडीगढ़ में एक सादे समागम दौरान राजपाल बनवारी लाल पुरोहित ने डॉक्टर बलबीर सिंह नूं अहुदे दी सौं चुकाई। इस दे नाल ही पंजाब मंत्री मंडल विच कुछ होर फेरबदल भी किया गया है। चेतन सिंह जौड़ा माजरा नूं फौजा सिंह सरारी का फूड प्रोसैसिंग का मंत्राला दे दिता गया है। गुरमीत सिंह मीत हेयर नूं माइनिंग विभाग सौंपिया गया है, जबकि सिक्ख्या मंत्राला हरजोत सिंह बैंस के हवाले कर दिता गया है। इस दे नाल ही जेल विभाग हुण मुख मंत्री भगवंत मान वालों खुद ही वेख्या जाएगा। अनमोल गगनमान नूं सैर सपाटे दे नाल प्राहुणचारी मंत्राला भी सौंप दिता गया है। इस तो पहला कल सवेरे कैबिनेट मंत्री फौजा सिंह सरारी ने अपने अहुदे तो अस्तीफा दे दिता सी। सरारी नूं पिछले साल रिश्वत संबंधी ऑडियो क्लिप दे वायरल होने तो बाद आम आदमी पार्टी वालों कारण दस्सो नोटिस जारी किया गया सी।
पंजाब के जल सप्लाई और सैनीटेशन मंत्री ब्रह्म शंकर जिंपा ने केंद्री जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत तो पंजाब के सरहदी जिलों में पानी के म्यार के सुधार लई केंद्र सरकार वालों सहयोग की मांग की है। भोपाल विच वाटर विजन 2047 दौरान संबोधन करदियां जिंपा ने सरहदी इलाके के पानी विच सुधार लई केंद्री फंडां चों कुछ हिस्से की मांग की है। उन्होंने कहा कि कौमांतरी सरहद नाल लगदे फिरोजपुर फाजिलका गुरदासपुर तो इलावा बठिंडा के कई इलाकों का जमीनी पानी पीण योग नहीं है। उन्होंने कहा कि इस पानी विच हैवी मैटल और यूरेनियम वर्गे तत्त पाए जा रहे हैं, जिस करके इत्थों के लोग कैंसर वर्गियां नामुराद बीमारियां नाल जूझ रहे हैं। सैमीनार के विषय बारे बोलदियां मंत्री ने कहा कि कुदरत की सब तो अहम नियामत पानी बारे इस तरह की पहलकदमी कौमी पद्धर ते कीती जानी बहुत अहम है। उन्होंने कहा कि पानी की इस अहमियत को समझते हुए लोगों को भी इसकी वरतों बारे गंभीर होना पवेगा। भोपाल विच हुई इस कॉन्फ्रेंस विच देश के सारे सूबियां ते केंद्री प्रबंधक प्रदेशों के मंत्रियों माहिरां अते उच्च अधिकारियों ने हिस्सा लिया अते पानी की योग वरतों अते होर पहलुआं ते विचार चर्चा की गई। भारतीय जनता पार्टी के कौमी जनरल सकत्तर तरुण चुग ने पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार उपर हर फ्रंट ते फेल होने का दोष लगाया है। उन्होंने कहा कि सरकार दे 1 साल पूरा होने तो पहला 2 मंत्रियों का अस्तीफा उसकी असफलता की कहानी खुद बयान करता है। तरुण चुग ने कहा कि सरकार ने राज के हर वर्ग नाल कीता अपना कोई भी वादा नहीं निभाया है। किसानों तो लैके आम आदमी सब सरकार तो नाराज ने। सरकार और मंत्रिमंडल और विधायक किसी विच तालमेल नहीं है। ब्यूरोक्रेसी अपने पासे चल रही है, पंजाब का प्रशासन अपने पासे चल रहा है, सरकार अपने पासे चल रही, मंत्री अपने पासे चल रहे हैं और ईमानदारी का ढोंग रच के जिहड़ी सरकार बनी सी और ईमानदारी दीयां पोलां बदलाव दीयां पोलां खुल गई। जनता दुखी है, हर फ्रंट ते सरकार फेल है। पंजाब पुलिस ने केंद्री एजेंसियां अते BSF नाल अंजाम दिते सांझे ऑपरेशन विच एक फौजी अते उसके साथी नूं 31 किलो हैरोइन समेत गिरफ्तार किया है। पंजाब के DGP गौरव यादव ने चंडीगढ़ तो जारी एक बयान विच दस्सिया कि पठानकोट विच सिपाही वजों तैनात 26 साला फौजी जवान नूं उसके साथी समेत गिरफ्तार किया गया है। हैरोइन की बरामदगी तो इलावा पुलिस ने दोषियों कोलों एक कार अते 2 मोबाइल फोन भी बरामद किए ने। DGP ने दस्सिया कि SSP भुपिंदर सिंह संधू की अगवाई विच पुलिस ने सदर फाजिलका के खेतर विच घेराबंदी की अते तलाशी मुहिम चलाई। इस दौरान कार की चैकिंग ते कार विचों 31 किलो वजन के 29 पैकेट हैरोइन बरामद की गई। फिरोजपुर रेंज के DIG रणजीत सिंह ढिल्लों ने दस्सिया कि मुंडली जांच दौरान यह गल सामने आई है कि ये दोवें दोषी पाइप नाल सरहदी कंडियाली तार तो पार पाकिस्तान स्थित तस्करां वल्लों भेजी गई नशियां की खेप बरामद करके उत्थों फरार होने की कोशिश विच सन। उन्होंने कहा कि अगलेरी जांच जारी है। मालवा सभ्याचार मंच पंजाब वालों 11 जनवरी नूं धीआं दी लोहड़ी मेले का आयोजन किया जा रहा है। मंच के प्रधान कृष्ण कुमार बावा अते सरप्रस्त मलकीयत सिंह दाखा ने कल लुधियाना विच एक पत्रकार कॉन्फ्रेंस दौरान इस बारे जानकारी दिंदियां दस्सिया कि मेले दौरान फिल्म कलाकार अते समाज सेवी सोनू सूद नूं टोडरमल सेवा अवार्ड, सिद्धू मूसेवाला दे माता चरण कौर नूं शुभजीत ममता अवार्ड अते 90% अपंग रणदीप कौर नूं कल्पना चावला अवार्ड नाल सन्मानित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस मौके ते छोटियां बच्चियां दी लोहड़ी मनाई जाएगी। भारत ने राजकोट विच कल खेडिया गया तीजा ते आखिरी T20 मैच जित के 3 T20 मैचों की लड़ी अपने नां कर ली है। भारत ने सूर्य कुमार यादव दीयां 51 गेंदां ते बनाईयां गईयां 112 दौड़ां की मदद नाल श्रीलंका नूं 91 दौड़ां नाल हरा के 3 मैचों की लड़ी 2-1 नाल जित लई। पहलां बल्लेबाजी करदिआं भारत ने 5 विकटां ते 228 दौड़ां बनाईयां अते श्रीलंका सामने जित लई 229 दौड़ां दा टीचा रखिया, जिसका पिछा करदिआं श्रीलंका की सारी टीम 137 दौड़ा बना के उस वेले आउट हो गई जदों 20 गेंदां खेडियां जानियां अजे बाकी सन। अक्षर पटेल नूं प्लेयर ऑफ द सीरीज़ ऐलानिया गया।
ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੰਘਣੀ ਧੁੰਦ ਪੈਣ ਅਤੇ ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਡ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਤੋਂ ਹੀ ਸੰਘਣੀ ਧੁੰਦ ਨੇ ਪੂਰੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਕੜ ਵਿੱਚ ਲੈ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਰੌਸ਼ਨੀ ਇੰਨੀ ਘੱਟ ਹੈ ਕਿ 10-15 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਵਾਹਨ ਕੀੜੀ ਦੀ ਚਾਲ ਚੱਲਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਸਵੇਰ ਵੇਲੇ ਸੈਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਠੰਡੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਚੱਲਣ ਨਾਲ ਹੱਥ ਪੈਰ ਵੀ ਸੁੰਨ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਹੀਟਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਠੰਡ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੀਤ ਲਹਿਰ ਦੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਗੋਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਡ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਅਨੁਸਾਰ 3.6 ਸੈਲਸੀਅਸ ਡਿਗਰੀ ਤਾਪਮਾਨ ਨਾਲ ਬਠਿੰਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਠੰਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਰਿਹਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਾਪਮਾਨ 7.8 ਡਿਗਰੀ, ਪਟਿਆਲਾ 7.4, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾ 5.4 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤਾਪਮਾਨ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ RNU DDK ਜਲੰਧਰ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ, Facebook ਪੇਜ ਅਤੇ Twitter ਹੈਂਡਲ ਤੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਨਮਸਕਾਰ।